Hello everyone, welcome to this channel. This is Anjali Pratap and you are here on iXMB. Embrace the iXMB learning experience where you can prepare 50% faster. And in the series of our RC, here we are with the third session. But before going towards that, would like to share this information with all of you that till now iXMB has witnessed 350 plus selections in RBI Grade B exam, and you can be one of the next selected aspirants or students. You can definitely visit our website anytime to understand the course, the offerings, or the various good little things what we provide here, which will definitely be a turning point in your preparation. Similarly, students who are targeting NABARD as well as SEBI exam, which is we are expecting somewhere in the upcoming months, तो अभी आप इसकी प्रिपरेशन बिल्कुल शुरू कर सकते हैं. यू कैन डेफिनेटली विजिट आवर वेबसाइट फॉर मोर सच इंफॉर्मेशन. कमिंग बैक टू आवर सेशन एवरीबडी, लास्ट वीक हम लोगों ने एक आरसी किया था जिसका आज हम होमवर्क भी डिस्कस करेंगे सबसे पहले. एंड आई सॉ लॉट ऑफ वेरी करेक्ट आंसर्स ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड इन द कमेंट सेक्शन. First of all, kudos to all of you and keep on providing your correct answers over here so that जो है ना हमारा सबकॉन्शियसली हम एक काफ़ी important segment जो है हमारे RBI grade B का reading comprehension will be able to solve it in a quite well manner everybody. So maybe anyone who is coming for this session for the very first time everybody, let me just quickly brief you about this session in another 1 minute. These sessions are meant to target the different ways in which we can approach an RC. This is basically revolving around the techniques of reading and not only solving the question. We will also try to build our skills in dealing with different type of questions. For example, if you have seen previous year papers of RBI, you know that varieties of question come in terms of main idea, inference based question, tone based question, right? So this is something what we generally do in these session. So the way we you can say go ahead with these passages like that I show you these slides of the passage first, you solve it on your own, I provide some time, and you people can pause on the respective screen, you solve it first and then we discuss these questions together everyone. So पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पैसेज का लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था उसका आंसर क्या है. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी डिस्कस्ड वाज, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ऑथर के इम्प्लाइड क्रिटिक यानी जो भी उन्होंने आलोचना की है, जो भी उन्होंने पॉइंट्स हाईलाइट किया है, उसे कैप्चर कर रहा है. So they overly focus on short-term subsidies rather than the long-term infrastructure. So this short-term subsidy was the I think you can say the best point जिसके वजह से हमने इस आंसर को चुना. The second question was the reference to prosperous farmers with larger land holdings buying tractors suggests that कि अब जो लोग हैं ना, जो हमारे फार्मर्स हैं, दे आर ऑल्सो गोइंग टूवर्ड्स व्हाट द मेकेनाइजेशन ट्रेंड, राइट. तो ये अब काफ़ी चलन में आ गया है, यू कैन से नाउ दिस इज बिकमिंग बिट पॉपुलर. सो ये जो रेफरेंस था इस सेंटेंस का, इसका जो मीनिंग है वो ये कन्वे करना चाह रहा था कि मेकेनाइजेशन ट्रेंड्स जो है वो सभी साइज के अंदर अब आ चुके हैं. अब ऐसा नहीं सोचना है हमें कि छोटे या बड़े फील्ड्स के लिए ही ये चीज़ लागू होगा. सो दैट वॉज नॉट द केस एवरीबडी. सो लेट अस स्टार्ट विथ टुडेज पैसेज एवरीवन. सो फील फ्री टू पॉज योर वीडियो हियर, रीड इट. This is the second slide. And this is the last one and the third slide, everybody. Okay, let me show you the first question. Please pick your answer. Keep it handy with you in your notebook. अगर अभी तक पेन और पेपर लेकर नहीं बैठे हो, please bring it out. That's the first question. Second question. Third question. Fourth question. And fifth question.
Okay, so by this time, I hope you people have already read the passage and solved the questions. Now it's time for us to go ahead with the understanding of the passage, everyone. So let's just try to see whether we all are on the same page. When we read the first paragraph, okay, so what was the, you can say, the core theme of it? It was all about the industrial production, everybody. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे स्लो हुआ है पहले 2 महीनों में, जो फिनेंशियल ईयर है 2025-26 का. हाउ दिस प्रोडक्शन हैज स्लोड, एवरेजिंग ओनली 1.9% growth compared to 5.7% in the last year. So that was all about the first para. When we read the second para, it further explained कि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर जो है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा श्रिंक कर गया है by 5.8% in the month of May. ये जो है ना ये काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों में, जिसका रीज़न बताया गया है स्टूडेंट्स ड्यू टू कूल वेदर. ये जो वेदर है हमारा उसको एक पॉसिबल रीज़न बताया गया है. और दूसरा है रिड्यूस्ड इंडस्ट्रियल पावर कंजम्पशन. रिड्यूस्ड इंडस्ट्रियल पावर कंजम्पशन, ये 2 कारणों की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा सेक्टर है वो श्रैंक हुआ है यहाँ पे. ठीक है, चलते हैं थर्ड पैराग्राफ के ऊपर. दिस थर्ड पैरा वॉज बेसिकली फोकस्ड ऑन अगेन द स्लो डाउन. अगर आप ध्यान से देखो तो ट्रांजिशन कुछ भी नहीं हुआ है. हम बिल्कुल सेम जो थीम हमने फर्स्ट पैरा से शुरू किया स्टूडेंट्स, वी आर जस्ट गोइंग अहेड विद दैट. एंड दिस स्लो डाउन इज एक्चुअली वाइड स्प्रेड अक्रॉस इंडस्ट्रीज. मतलब राइट नाउ वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी और एनी वन इंडस्ट्री, वी आर टॉकिंग अबाउट अक्रॉस इंडस्ट्रीज, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का नाम लिया गया है, टेक्सटाइल है, लेदर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, जिसकी वजह से हमें वीक कंज्यूमर डिमांड देखने को मिल रहा है. ओके, and this is actually producing or presenting basically a very grim circumstance in front of us. चलते हैं फोर्थ पैराग्राफ के ऊपर. एंड फोर्थ पैराग्राफ इज नथिंग बट अ डिटेल्ड एनालिसिस. डिटेल्ड एनालिसिस किस चीज़ के बारे में? ये जो स्लो डाउन है हमारा उस चीज़ के ऊपर. सो डिटेल्ड एनालिसिस ने क्या रिवील किया स्टूडेंट्स? दैट प्रोडक्शन ऑफ दीज मेनी डिस्क्रिशनरी आइटम्स, जैसे कि फ़ोन हो गया, कूलर्स हो गए, और भी सारे जो आइटम्स यहाँ पे दिए गए हैं आपको, ये जो है ना इनकी भी गिरावट हुई है, इनमें भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है, जिसकी वजह से हमें ये मालूम चल रहा है कि पीपल आर नाउ अवॉइडिंग नॉन एसेंशियल पर्पजेस. जो अब उनकी ज़रूरत है अब बस उसी चीज़ में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं. नॉन एसेंशियल परचेज लोग अब नहीं कर रहे हैं. अगेन आगे आगे हमें ये भी बताया गया यहाँ पे कि जो नॉन ड्यूरेबल आइटम्स है, जैसे ध्यान से देखो आप, हनी हो गया, फ्रूट जूस हो गया, बॉटल्ड वाटर है, इसमें भी गिरावट देखने को गई है. विच इज़ इंडिकेटिंग बेसिकली कि कंज्यूमर्स आर कटिंग बैक ऑन इवन सेमी इसेंशियल प्रोडक्ट्स. तो इन अ वे आप ये समझ सकते हैं कि कंज्यूमर्स आर नाउ पुटिंग मोर फोकस ऑन ओनली इसेंशियल आइटम्स. उन्होंने नॉन इसेंशियल और सेमी इसेंशियल दोनों ही प्रोडक्ट्स को यहाँ पे फिलहाल बैक सीट पे रख दिया है. जून का डाटा हमें ये भी बताता है कि कोई भी मेजर रिकवरी नहीं हुई है. कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स दोनों ही वीक रहे डिस्पाइट हेल्दी डिमांड फॉर इंटरमीडिएट गुड्स. एंड लास्ट में हमारा जो कंक्लूजन है वो ये बताया गया कि फिनेंस मिनिस्टर जो है ना वो ऑप्टिमिस्टिक तो हैं डिमांड रिवाइवल को लेकर, क्योंकि टैक्स कट किया है उन्होंने, अच्छी मॉनसून है, लेकिन कहीं ना कहीं वीक अर्बन डिमांड की वजह से अभी भी बहुत ज़्यादा हम श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते हैं दैट वेदर दिस विल गेट आउट ऑफ इट, ये इससे रिकवर कर पाएगा या नहीं. तो हमारी मिनिस्टर ने कुछ स्टेप्स तो उठाए, कुछ बताया तो, बट अभी भी सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल नहीं बोल सकते हैं हम. सो दैट वॉज ऑल अबाउट आवर पैसेज एवरीबडी. आई होप हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सेम पेज पर है. अब हम चलेंगे अपने पहले क्वेश्चन के तरफ. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सजेस्ट which of the following best captures the central argument of the passage. Central argument will never be restricted to 1 or 2 para, everyone. It should be talking about the entire core theme. So let's talk about the first option. Industrial output in 2025 has been negatively impacted by supply chain disruption and external trade pressure, which is not relevant to our context. Weak consumer demand, yes, a relevant point, especially for discretionary goods, is a primary contributor to the recent decline in India's industrial production. So अभी तक तो ये ठीक लग रहा है हमें. Contraction in electricity output is an isolated anomaly due to climatic factors. So this has not been the only concern, everybody. तो इसे central theme नहीं बोल पाएंगे अभी हम. So this is not going in the right track.
Budget 2025 initiatives and the monsoon will together revitalize both urban and rural demand, arresting the decline in industrial growth, which we were not right now quite hopeful. हमने ये पॉइंट तो लिखा है बट दिस इज़ नॉट एक्चुअली दी सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ द पैसेज. तो ये ऑप्शन किसी और क्वेश्चन के लिए रहता तो शायद वी कुड हैव कंसीडर्ड. Despite some sectoral weakness, intermediate goods and capital goods have held the IIP stable overall. It is given, but this is not again the central theme, everybody. So ultimately we are going with option number B as our answer because weak consumer demand जो है वो हमारा main element था इस question का. Question number 2 is asking what is the author's most likely purpose in referencing special consumer goods like footwear, shaving razors and air conditioners. तो इनका नाम आखिर हमारे ऑथर ने क्यों दिया? भाई इन्होंने इसलिए दिया, ये सेंट्रल आइडिया हमको बताने के लिए कि कैसे इन चीज़ों में गिरावट आई हुई है, isn't it? So if you read actually sentence number C, option number C, to illustrate that discretionary consumer spending has slowed, reinforcing that central idea of demand weakness. तो ये चीज़ का हमें यू कैन से इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एविडेंस, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इसेंशियल प्रूफ, हमारे ऑथर ने इन आइटम्स का इस्तेमाल किया है ताकि ये बताने के लिए कि भाई देखो डिमांड में कैसी गिरावट आ गई है. सो दैट वाज इट, दैट वाज द सेकंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन, आई होप अभी तक हम लोग बिल्कुल सेम पेज पर चल रहे हैं. किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा स्टूडेंट्स, फील फ्री टू आस्क अबाउट दैट इन द कमेंट सेक्शन, नो वरीज अबाउट दैट. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड अबाउट कंज्यूमर सेंटिमेंट फ्रॉम द पैसेज. तो कंज्यूमर सेंटिमेंट के ऊपर कौन सा पॉइंट जो है वो हमारा करेक्ट है, चलिए पढ़ते हैं. कंज्यूमर्स आर प्रायोरिटाइजिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी ओवर शॉर्ट टर्म कंजम्पशन. कैन बी अ वैलिड ऑप्शन क्योंकि हम सिर्फ इसेंशियल पे ही खर्च कर रहे हैं. There has been a seasonal decline in spending due to weather anomalies. This is not actually related to the consumer sentiment. अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत ज़्यादा relevant नहीं है हमारे consumer sentiment को लेकर. The absence of essential goods in contraction list indicates that rural markets are unaffected. Nothing has been commented upon, so not a right answer. Consumers are increasingly turning towards import due to lack of domestic innovation. Not at all. The growth in intermediate goods consumption points to a rebound in discretionary spending. नहीं, तो बहुत क्लियरली हमारा आंसर जो है वन साइडेड है यहाँ पे और वो है ऑप्शन नंबर ए. क्योंकि हमने देखा हमारे ऑथर ने हाईलाइट किया है कि जो कंज्यूमर है उनका डिमांड नॉन एसेंशियल आइटम की तरफ घटा है. इसका मतलब ये है कि लोग जो है वो टैंजिबल चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं, मतलब लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द शॉर्ट टर्म कंजम्पशन. Now very essential question in terms of our understanding of a passage, everybody. But ये जो सवाल है वो है ऑथर का टोन in only the final paragraph referencing finance minister सीतारमन्स कमेंट. तो उनके कमेंट के ऊपर हम किस टोन को रेफर कर सकते हैं? Was it optimistic? Was it neutral? Was it skeptical? What is dismissive? What is alarmist? So actually ऑथर ने ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट तो दिया है, देयर इज़ नो डाउट, लेकिन उन्होंने ये भी हिंट किया है विद द ग्राउंड डाटा कि कैसे अर्बन डिमांड जो है वो कमज़ोर हुआ है, हिंटिंग एट पोलाइट सेप्टिसिज्म, इजंट इट? सो द बेस्ट tone for this question is actually going with option number C. So option number A can be present, but the more correct answer to this one is going with skeptical because author ने positive और negative दोनों ही emotions वहाँ highlight किए हैं एक confusion दिखाकर. The last question, according to, sorry, my bad. Which of the following best describes the structural approach taken by the author in this passage? गाइस स्ट्रक्चरल अप्रोच का मतलब ये होता है कि बेसिकली हमारे ऑथर का स्टाइल क्या था इस आर्टिकल को लिखने के पीछे. सो यू हैव टू टॉक अबाउट व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस आर्टिकल. ठीक है, चलिए पढ़ते हैं. उन्होंने पहले थ्योरेटिकल प्रेमाइस इंट्रोड्यूस किया एंड देन प्रूविंग इट विथ मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स, presenting a data-backed narrative of industrial decline followed by sectoral analysis and a brief policy reference, using anecdotal evidence to criticize fiscal policy, juxtaposing manufacturing data against agricultural performance to draw broader inferences, presenting a policy summary
followed by interpretive economic theory. I think जब हमने पढ़ा था तभी थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल गया था that B is somehow holding all the paragraphs together. Yes, data was there. Yes, industry decline has been mentioned. Sectoral analysis भी किया गया, different sectors की बात हुई, और लास्ट में पॉलिसी का भी रेफरेंस दिया गया, isn't it? So B was our complete answer for this one. अब आपका समय आ गया है 2 होमवर्क क्वेश्चन का. तो ये फिलहाल आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में आप इसे सॉल्व कर लेना एंड प्रोवाइड द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन एवरीबडी. सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस. आप यहाँ पे पॉज करके इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड प्रोवाइड योर आंसर इन द चैट सेक्शन एवरीबडी. ठीक है, चलिए अब समय आ गया है आज के आर्टिकल के मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी का. So there are some good words actually in this one, और especially those people who are preparing for RBI. आपको ये terms अगर नहीं पता है तो पता होने चाहिए, because this was core to your subjects everybody. आपको descriptive में भी काफ़ी help मिलेगा. So let me take you with the first word. Slump. Slump is nothing but a decline. Whenever you experience a sharp decline, you use the word slump. Like industrial growth slumped to a 9-month low. कॉन्ट्रैक्शन अगेन एक्सपेंशन का ऑपोजिट है ये. वेन एवर अगेन देर इज अ रिडक्शन और देर इज अ डिक्लाइन, वी यूज द वर्ड कॉन्ट्रैक्शन. ऑफ टेक. ऑफ टेक. ऑफ टेक इज अ वेरी नाइस टर्म एक्चुअली. द एक्ट ऑफ टेकिंग अप और कंज्यूमिंग गुड्स, मतलब समझ रहे हैं आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो. लोअर ऑफ टेक, तो इन अ वे आप ये कह सकते हो कंजम्पशन, लोअर कंजम्पशन फॉर इंडस्ट्रियल पर्पजेज. सो एक्ट ऑफ टेकिंग अप और कंज्यूमर गुड्स. स्लैकनिंग. स्लैकनिंग मीन्स समथिंग विच इज़ बिकमिंग लेस इंटेंस. कोई चीज़ की जो इंटेंसिटी है अगर वो कम हो रही है, देन वी यूज़ द वर्ड स्लैकनिंग. डिमांड इन द इकोनॉमी मे इवन बी स्लैकनिंग फर्दर, मतलब डिमांड जो है वो और भी ज़्यादा इंटेंस कम होगी. ओके, मतलब वो और भी गिरावट होती जाएगी उस चीज़ में. डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग. गाइज डिस्क्रिशनरी इज़ नॉन एसेंशियल. नॉन एसेंशियल, दैट्स अ वेरी नाइस टर्म. आई होप आपने अगर कोई आर्टिकल या RBI बुलेटिन्स वगैरह पढ़ते हो तो आपको ये आइडिया होगा. जैसे कि एग्जाम्पल लिखा गया था, आइटम्स लाइक कूलर्स एंड रेजर्स रिफ्लेक्ट अ फॉल इन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, मतलब जो ऑप्शनल स्पेंडिंग है उसमें गिरावट आई है. The last table for this everybody, the word is skewed. Skewed means when something is being avoided या उसमें थोड़ा जो है ना diversion आया हुआ है. Lean period, obviously lean means something which is thin, so weak economic activity का period आप इसे बोल सकते हैं. Lean period is a weak economic activity period. Augur well. Augur is a good word in English. Augur का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को support करते हो, आप किसी चीज़ को उम्मीद देते हो. सो समथिंग वेल, आई मीन ऑगरिंग वेल का मतलब है कोई चीज़ बहुत अच्छी हो रही है. सबड्यूड, व्हेन समथिंग इज बिकमिंग लेस, समथिंग इज बिकमिंग म्यूटेड, तो फॉर दैट यू यूज द वर्ड सबड्यूड. वो कम हो रहा है, घट रहा है. इम्प्लाई, वेरी नोन वर्ड एवरीबडी. इम्प्लाई, जब मैं इनडायरेक्टली आपको कोई चीज़ सजेस्ट करूँ वो इम्प्लाई होता है. स्केप्टिसिज्म, जैसे हमने टोन किया स्केप्टिकल, तो स्केप्टिसिज्म में एक हिंट होता है डाउट का. सो वेन एवर देर इज अ सेंस ऑफ हेजिटेशन, देर इज अ सेंस ऑफ डाउट, वी यूज द वर्ड स्केप्टिसिज्म. So that's it for today everybody. I hope you learned some good words today. Do not forget to provide your answers in the comment section and feel free to ask any doubt if there is any. आज के लिए इतना ही रखते हैं. Thank you for being there. मिलते हैं अगली सेशन में. Bye bye. Take care.